Hello, Bacho, and welcome once again to the clinical anatomy case discussion of the lower limb. कैसे चल रहा है? हाँ, कैसे चल रहा है ये केस डिस्कशन सीरीज? एंजॉय कर रहे हो? I'm sure you must have definitely understood. You must be having confidence now. चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट एमसीक्यू. ये पूरा क्लिनिकल सीरीज जरूर देखिए एंड सीक्वेंस वाइज देखिए. सो है ना, वो धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होता है सीक्वेंस वाइज, लाइक 1 2 3 4 ऐसे देखना उसको. चल कम टू दिस क्वेश्चन. बैडमिंटन खेल रहा है प्लेयर, बैडमिंटन, यस बैडमिंटन खेल रहा है एंड एकदम से गिर जाता है, लैंड्स ऑकवर्डली विद एंकल इन्वर्शन. मतलब अगर सीधे गिरोगे तो भी ठीक है, एंकल इन्वर्टेड है, मतलब जस्ट इमेजिन एंकल इन्वर्ट करके गिर गया. व्हेन द एंकल इज इन्वर्टेड, प्रेशर कहां पे आता है? प्रेशर कहां पे आएगा? ऑन द लैटरल साइड, लैटरल मैल्यूलस पे प्रेशर आएगा. अंडरस्टैंडिंग? व्हेन द एंकल इज इन्वर्टेड, बहुत सीवियर इन्वर्टेड हो गया तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा. वहां पे जितने भी लिगामेंट्स हैं दैट विल बी स्ट्रेच्ड, दैट मे बी इंजर्ड. दैट्स हाउ यू कम टू अ डायग्नोसिस. ठीक है. has swelling and tenderness anterior to the lateral malleolus. So lateral malleolus के anterior side पे swelling है, tenderness है. समझ में आ रहा है बच्चों? पर्सन बैडमिंटन खेल रहा है, he meets with an injury, foot is इन्वर्टेड फुट पे वो गिर गया, मतलब स्ट्रेच प्रेशर कम्स ऑन विच एस्पेक्ट? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल जॉइंट. अब आगे टेंडरनेस है. सो विच इज द लिगामेंट देयर? एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट. एंटीरियर टैलोफिबुलर, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट होता है. एंटीरियर, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर एंड कैल्केनियोफिबुलर, दीज आर द थ्री लिगामेंट्स on the lateral aspect of the ankle joint. Anterior talofibular, posterior talofibular and calcaneofibular. अब यहाँ पे specifically दिया है anterior to the lateral malleolus, so your answer is going to be the anterior talofibular ligament. So which is the ligament injured? Anterior talofibular ligament. Anterior talofibular ligament. ठीक है. Why is this ligament mostly injured? This ligament is more susceptible to injury when the foot is plantaflex. I mean when the foot is inverted. जब inverted foot होता है ना, so pressure comes on the lateral side. The very commonly injured ligament is anterior talofibular ligament because the foot is inverted. So very commonly injured ligament is anterior talofibular ligament. So why is this ligament injured? Because inverted foot में इसका injury बहुत common होता है. Which are the muscles which cause inversion of the foot? बोल सकते हो? Inversion of the foot. Basically, inversion and eversion takes place at which joint? Inversion of the foot. Inversion of the foot. देखो बच्चों, एग्जाम्स में पूछते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटाफ्लेक्शन. ये डॉर्सिफ्लेक्शन है एंकल जॉइंट का, ये प्लांटाफ्लेक्शन है. सो डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटाफ्लेक्शन ऑकर्स एट विच जॉइंट? Ankle joint. Yes, very good, ankle joint. Whereas inversion and eversion occurs at which joint? क्या बोल रहे हो? Ankle? नहीं नहीं, ankle नहीं है. ये गलती बिल्कुल नहीं करना. Dorsiflexion, plantarflexion, yes, ankle joint. Inversion and eversion takes place at subtalar and mid-tarsal joints. Subtalar and mid-tarsal. याद रखना बच्चों, भूलना नहीं इसको. Inversion and eversion takes place at subtarsal and mid-tarsal joint. ये याद रखना, subtalar and mid-tarsal joint. So inversion कौन करता है? Who does inversion? The main is tibialis anterior. Tibialis anterior. That's a main inverter, and tibialis posterior. Tibialis anterior and tibialis posterior. These are the main inverters. बाकी भी inverters हैं. Flexor medial, flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. ये भी तो inverters हैं. Posterior compartment inversion करता है, plantarflexion करता है. One muscle from the anterior compartment, that's tibialis anterior, a very powerful inverter. So inversion is done by tibialis anterior, tibialis posterior, very powerful, also assisted by flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. And eversion बोल सकते हो? Eversion. Eversion of the foot is done by peroneus longus, peroneus brevis, and peroneus tertius भी ले ही लो. Peroneus tertius भी ले ही लो. So peroneus longus, peroneus brevis are the main everters. Peroneus tertius, accessory everter. Accessory everter. ठीक है. So inversion and eversion of the foot. Who does this?
तो ये हमने आंसर कर दिया, ठीक है। नेम द मसल्स कॉजिंग इन्वर्शन ऑफ द फुट, एंड इवर्शन भी बोल दिया। Which other ligament is commonly injured in high grade sprain? मतलब हाई ग्रेड स्प्रेन में और कौन सा लिगामेंट इंजर होगा? तो कैल्किनियोफिबुलर, कैल्किनियोफिबुलर दूसरा लिगामेंट है, कैल्किनियोफिबुलर। और ज्यादा सीवियर हो गया स्प्रेन, हाई ग्रेड स्प्रेन मतलब और सीवियर स्प्रेन हो गया, तो द अदर लिगामेंट कैन आल्सो बी इंजर्ड, दैट्स कैल्किनोफिबुलर लिगामेंट। सो लैटरल साइड पे 3 लिगामेंट्स हैं, एंटीरियर टैलोफिबुलर, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर एंड कैल्किनियोफिबुलर। मीडियल साइड ऑफ द एंकल जॉइंट पे होता है डेल्टॉइड लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट, हाँ ठीक है ना डेल्टॉइड लिगामेंट याद रखना, ठीक है। सो आई होप दिस एमसीक्यू इज क्लियर टू यू। हाँ, अगर कोई इन्वर्टेड पोजीशन में गिर जाता है, इवर्टेड पोजीशन में गिर जाता है, तो डेल्टॉइड लिगामेंट विल बी इंजर्ड। अगर कोई इन्वर्टेड पोजीशन में गिर जाता है तो लैटरल एस्पेक्ट के लिगामेंट्स इंजर होंगे। श्योर बच्चों, क्लियर है? समझ में आ गया ये ये क्लिनिकल क्वेश्चन इज क्लियर? बस जो पूछा गया है उसी को आंसर करना है। दिस इज अ 5 मार्क्स क्लिनिकल क्वेश्चन, ABCDE ऐसे टॉपिक्स या ऐसे सब क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आंसर अकॉर्डिंगली, बस जो पूछा है वही आंसर करना है। डिस्कस और उसका एन्यूमरेट, डिस्कस एंड क्या बोलूं, डिस्कस नहीं करना उसको, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन ओके, जस्ट राइट व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है बच्चों। तो एक क्लिनिकल एमसीक्यू स्पेशली फॉर यू वंस अगेन। वेट, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट इन इन्वर्शन एंकल स्प्रेन, इन्वर्शन एंकल स्प्रेन कौन सा लिगामेंट इंजरी होगा? ठीक है बच्चों, कमेंट करना आंसर बॉक्स में। I'm sure you'll be able to answer this. I'm sure you are enjoying this series. क्या बोलते हो बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I'm always there for you. Thank you till then.